If anybody is going to ask me right now whether I'm ready for a new year or not, then my answer is definitely going to be no. That I'm still not ready for a new year. I still have a lot of things that I did not complete, that I wrote on my vision board. I still have a lot of things that I planned for my new year and I wrote on this journal and are still not completed. I still have a lot of things and feelings and thoughts inside my head that I need to channel. I'm still not over 2025. There are so many things that are unchecked and that I need to work upon. इवन कल रात 10 बजे तक आई वाज सो सैड, कन्फ्यूज्ड एंड परप्लेक्स्ड कि अभी तक मैंने कुछ प्लान नहीं किया, अभी तक मैंने कोई रेजोल्यूशंस नहीं ली. देयर आर स्टिल सो मेनी थिंग्स दैट आई वांटेड कि मैं 2026 में अपने साथ ना लेके जाऊँ, एंड आई वांटेड टू रिमूव ऑल दोज थिंग्स मेरे अंदर से बिफोर 2026 स्टार्ट्स. But I couldn't do it, and boom, here we are. Well, happy new year to all of you and your families from my side. I hope this year brings you immense joy, pleasure, and all the opportunities that you deserve. बात करें अपने 2025 वाले ईयर की, तो आई थिंक दिस ईयर आई हैव मोर रिग्रेट्स एंड गिल्ट्स देन आई हैव अचीवमेंट्स. वेल, ऐसा भी नहीं बोलूँगी कि मेरा साल बुरा गया या कुछ भी. नो, आई हैड एन अमेजिंग ईयर. I got amazing friends, I got amazing people around me. Some taught me how to live, some taught me how to be, some taught me how not to be. And overall, I think I came out stronger than ever before. And this was my biggest achievement. Well, this was my journal for 2025. I hope you remember this. मैंने डाली थी वीडियो एक बारी. And this journal is so bland, mundane and boring, and मेरा साल भी कुछ ऐसे ही गया था. It was nothing special. एंड पर हाँ, जो जो मैंने रेजोल्यूशंस लिए थे, आई टेरिबली फेल्ड इन ऑल दोज. मोस्टली लास्ट ईयर वाले मेरे रेजोल्यूशंस थे हाउ आई वांटेड टू बिल्ड अप पर्सनैलिटी, क्योंकि लास्ट ईयर सो मेनी थिंग्स हैपेंड एंड आई रियलाइज दैट आई एम नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ एंड आई वांटेड to have a strong and bold personality. And for that reason, throughout this year 2025, I chased on being somebody that I could never be, that I never was. पर ईयर एंड तक आते आते नवंबर दिसंबर तक आई रियलाइज दैट आई डू नॉट नीड टू बी समबडी एल्स. आई डू नॉट नीड टू अडेप्ट अ पर्सनैलिटी. दैट इज नेवर मी, दैट इज नेवर मी. I only have to work upon myself. I only have to prioritize myself to be strong. So yeah, that is one of the achievements. Talking about my resolutions, so one of the resolutions here that I want to talk about is learn to take stand for yourself rather than crying. तो ये चीज़ भी आई थिंक मैं अब जाके थोड़ा बहुत सीखी हूँ लास्ट तक, बिकॉज आई रियली नीडेड समबडी इन माई लाइफ टू स्टैंड बिसाइड मी, टू टेक माई स्टैंड, टू टू मेक मी रियलाइज कि नहीं, आई एम नॉट रॉन्ग, टू वैलिडेट मी इन एवरीथिंग. एंड भगवान की कृपा से आई डू हैव those people around me who takes my stand, who listens to me, who listens to my complaints every day, who make me feel special and everything. So I thank God for those special people around me. I thank God for giving me such amazing friends. And then another thing that I wanted to learn was to take things for granted, not to take everything so seriously and just to let things go. पर आई बिलीव कि एज फॉर समवन हु इज़ अ वेरी ह्यूज ओवर थिंकर, ये चीज़ सीखना इज़ नॉट ईजी. बहुत सारे इंसिडेंट्स में तो आई लर्न कि मैं चीज़ें ज़्यादा सीरियसली ना लूँ. बट हाँ, स्टिल दिस दिस वन थिंग आई थिंक कि ये मेरे अंदर से नहीं निकलेगी. आई एम अ वेरी सेंसिटिव पर्सन. तो हाँ, मैं चीज़ें ले लेती हूँ दिल पे. बट या दिस ईयर आई एम टेलिंग यू आई वॉज वे स्ट्रॉन्गर. मैंने बहुत सारी चीज़ लाइक कि हाँ, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता. तो यस, kudos to me for that. This also, one more thing this year was that ki I so many people showed me their true colors. Like literally, जिन लोगों पे I used to trust, जिन लोगों पे it's like कि नहीं यार, these people can never hurt me. They hurted me in the ways I could never imagine. And the lesson I learned from this thing was कि never expect anything किसी से भी. अच्छा हाँ, ठीक है, if somebody, कोई भी इंसान है ना, तो उससे आप एक्सपेक्ट करो ही मत कुछ कि वो आपसे अच्छा करेगा. बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट. ठीक है, अगर कोई आप
ये प्रिपेयर्ड रहो ना कि अगर आपको कोई सामने से आपके मुंह पे कोई भी कितना भी अच्छा है तो बी प्रिपेयर्ड फॉर अ सिचुएशन कि आपके मुंह पे सामने से वो कीचड़ भी फेंक दे। ठीक है, ऐसा नहीं हो कि किसी ने आपके मुंह पे कीचड़ फेंक रहा है कि हो भाई ये क्या कर दिया इसने, एंड यू आर इमोशनली ब्रोकन कि हाई ये मेरे साथ क्या हो गया। डोंट रिएक्ट दैट, आई मीन डोंट बी हार्ट ब्रोकन दैट टाइम कि इसने मेरे साथ ऐसा कैसे कर दिया। जस्ट बी रेडी फॉर द वर्स्ट। उसके बाद चाहे बेशक उस बंदे के मुंह पे 2 पंचेस मार के उस बंदे का मुंह तोड़ दो, एक्सपेक्ट मत रखो उससे अच्छा बनने का। बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट कि कोई भी कुछ भी कर सकता है, नो मैटर हाउ क्लोज दैट पर्सन इज टू योर हार्ट। बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। उसके बाद बेशक चाहे तुम 2 मुक्के मार के उसका मुंह तोड़ दो बंदे का, वो नहीं मैं तुम्हें मना कर रही हूँ, बट जस्ट बी प्रिपेयर्ड कि कोई कुछ भी कर सकता है। जस्ट प्रायोरिटाइज योर सेल्फ। यू हैव टू चैनल स्पेस दैट इज योर पर्सनल स्पेस, एंड उसके अंदर तुम्हें किसी को आने नहीं देना है। किसी को वो लिबर्टी नहीं देनी है कि वो तुम्हारा मूड स्पॉइल कर सके, वो तुम्हारी लाइफ का मेजर डिसीजंस कंट्रोल कर सके। सबसे पहली प्रायोरिटी तुम्हें खुद को देनी है। दिस इज द वन थिंग दैट आई गेस, दिस इज द माइंडसेट दैट आई बी टेकिंग विद माई सेल्फ फॉर दिस न्यू ईयर। और चीज़ें रेजोल्यूशन तो इस साल के लिए मेरा यही है कि इस साल आई एम गोइंग टू लिव माई लाइफ टू द फुलेस्ट। आई एम नॉट गोइंग टू पुट एनी रिस्ट्रिक्शंस ऑन माई सेल्फ, एनी रिस्ट्रिक्शंस ऑन माई पर्सनैलिटी। आई एम just going to do what I feel like. I'm just going to do what I enjoy doing, and I'm just going to do what suits me, what is good according to my convenience, not somebody else's. Another thing that I learned this year is everything gets better in a way better than you imagined. कभी कभी लगता है ना when life gives us tangerines कि हाय ये क्या हो गया, and we feel so heartbroken and everything, but उस केस में you just have to keep moving on and eventually everything will get better. Another thing, don't ever let people know your weaknesses कभी भी। अरे हाँ, एक और चीज़ इससे मुझे याद आई कि वन ऑफ माय बिगेस्ट मिस्टेक्स in 2026 sorry 2025 was that कि I trusted a lot of people very easily, and मैं बहुत जल्दी उनके सामने ओपन अप हो जाती हूँ अबाउट माई फीलिंग्स एंड थॉट्स एंड माई ओपिनियंस। एंड जितनी बार भी, मतलब अगर मैं 50 बार इस साल किसी इंसान के साथ ओपन अप हुई हूँ अपनी फीलिंग्स के बारे में, देन 50 के 50 बार मुझे रिग्रेट हुआ है, 50 के 50 बार मुझे धोखा मिला है। तो और अभी अभी जस्ट 2-3 दिन पहले की बात है ये, स्टार्टिंग फ्रॉम द ईयर, अभी आते आते भी लास्ट तक यही हुआ। एंड अभी तक मैंने ये चीज़, मतलब अब तो सीख ली क्या, अभी सोचा ही है अप्लाई तो अब नेक्स्ट ईयर, मतलब इस ईयर ही करूँगी 2026 में ही। पर हाँ, डोंट ओपन अप, किसी पे नहीं खुलो यार। द वर्ल्ड, मतलब 2000 पिछले साल तक तो लाइक कि ठीक है कुछ लोग होते हैं ऐसे, पर इतने ज़्यादा कुछ लोग होते हैं ऐसे ये मुझे नहीं पता था। तो वन ऑफ द टिप्स दैट आई एम गोइंग टू गिव यू, अगर आप तुम मुझसे छोटे हो तो एज अ एल्डर सिस्टर, की डोंट ट्रस्ट एनी वन ईजिली क्या करो ही मत ट्रस्ट किसी पे खुद के अलावा। तुम्हें नहीं पता कि वो तुम्हारी बात को किस तरह से सामने वाले के सामने पोर्ट्रे कर सकते हैं, एंड हाउ इट कैन बी सो harmful to you. So don't open up in front of anyone about your weakness, क्योंकि फिर वो तुम्हारी वीकनेस का फ़ायदा उठाएंगे 100% ऑफ द टाइम्स। मैं तो 99.9 भी नहीं बोल रही, 100% ऑफ द टाइम्स। एंड डोंट एक्सपेक्ट, तो मैंने बोल दिया, खुद पर भरोसा रखना वो तो खैर ऑब्वियस सी बात है। एंड oh, by the way, from one of few of the things on my vision board, like in my journal I had 5 things written on my vision board, and पांचों की पांचों में से एक भी मुझसे नहीं हो पाई। So well done for me. I couldn't complete non-academic books जितनी मैंने सोची थी। I didn't have a stable YouTube. I didn't manage to have a good score academically throughout. I could not got time to polish my extracurriculars like dancing, poetry, music, guitar. I wanted to learn guitar पर अभी तक मुझे नहीं आता है। And I wanted to have a clear skin and healthy body. Well, बीच में हो गई थी, but then again ठीक है, ये चीज़ें तो खैर टेम्परेरी हैं, ट्रांजिएंट हैं, इट्स नॉट गोइंग टू मैटर मच। पहले तो मेरे को थोड़ा रिग्रेट हो रहा था कि आई शुड हैव प्लान माई ईयर, आई शुड हैव रिटन रेजोल्यूशंस एंड माई गोल्स एंड एवरीथिंग, पर नहीं हो पाया। बट नाउ इफ आई थिंक अबाउट दिस कि ओके,
कौन सा मैंने पिछले वाले साल तो लिखे थे ना सब प्लान्स वगैरह, वो कौन से पूरे हो पाए। तो एटलीस्ट इस साल मैं ऐसा नहीं करूँगी, तो मुझे ये रिग्रेट तो नहीं होगा ईयर एंड तक कि मैंने लिखा था और मुझसे हुआ नहीं, तो मैंने लिखा ही नहीं। कि अगर ना भी होना हो तो एटलीस्ट ये दुख तो नहीं होगा मुझे कि मैंने कुछ लिखा नहीं, मैंने कुछ किया, कर नहीं पाई मैं। तो आई एम जस्ट, so they said I'm just going to be receptive for the opportunities. I'm just going to live in the present moment. I don't want to live in the future or past. I'm just going to do what suits me. I'm just going to do what fits right at that very moment. And yeah, I guess this is it. I just hope that this year सबके लिए अच्छा हो, मेरे लिए भी अच्छा हो, और I'll try to be better than ever, and I'll try to leave my bad habits, leave my laziness, my procrastination habit, and yeah, I'll try to be more spiritual this year. और तो कुछ नहीं है बोलने के लिए मेरे पास. Thank you to all the people who genuinely care about me, who genuinely see me as their true friend. एंड आई एम सॉरी अगर जाने अनजाने में मैंने कभी किसी का दिल दुखाया हो, बिकॉज यस दिस ईयर मैंने बहुत से लोगों का दिल दुखाया है. इस साल, अरे हाँ एक चीज़ रह गई इस साल. वन ऑफ द बेस्ट एडवाइजेस आई गॉट फ्रॉम अ वेरी क्लोज पर्सन इज दैट कि तुम्हें ज़्यादा अच्छा बनने की ज़रूरत नहीं है. डोंट बी सॉरी इफ़ यू आर हर्टिंग पीपल, बिकॉज यू आर हर्टिंग देम फॉर योर ओन गुड. तुम उनको जानबूझ के हर्ट नहीं कर रहे हो, पर अगर तुम्हारी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग अगर कोई हर्ट हो रहा है, देन इट्स ओके. यू जस्ट, you don't have to explain them, you don't have to be sorry for their condition even if you caused it. If you are trying to do something good for you, and in that situation you are indirectly hurting someone, so don't be sorry. तुम पहले खुद को रखो. Don't ever feel guilty about this thing, and just don't care. तुम ऐसे लोगों के बारे में परवाह मत करो, क्योंकि इन दी एंड वो बाद में वैसे भी तुम्हारे बारे में गलत ही बोलेंगे. सो दिस स्टॉप एक्सप्लेनिंग, एंड यू डोंट हैव टू बी अ वेरी गुड और अच्छा ह्यूमन बीइंग. आई थिंक समटाइम्स इट्स वे बेटर टू बी सेल्फिश रेदर देन बीइंग गुड. लाइक अच्छा होता गया यार, पहले अपने लिए तो अच्छा बनो, दूसरों के लिए अच्छा. देख लिया मैंने इतने सालों से करके, किसी का खुद गलत नहीं करना, पर अगर अपना अच्छा अच्छा करते करते किसी और का तुम्हें लगता है कि तुमने दिल दुखाया, देन डोंट बी सॉरी अबाउट दैट. फोकस ऑन योर सेल्फ. एंड हाँ, दिस इज इट फॉर दिस वीडियो. पता नहीं नेक्स्ट वीडियो कब डालूंगी मैं, तो अभी के लिए इतना ही. डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो वट एवर यू फेल्ट अबाउट दिस वीडियो. गिव इट अ थम्स अप इफ़ यू लाइक इट. डू सब्सक्राइब टू माई चैनल. इस साल तो पक्का मैं फ्री होने के बाद कंसिस्टेंटली वीडियोस डालूंगी. बहुत प्लान्स है मेरे पास, अभी तो पता नहीं टाइम मिलेगा मुझे नहीं मिलेगा, बट हाँ इस ईयर डेफिनेटली आई विल बी uploading videos consistently. And with this, I'll take your leave. Signing off. Goodbye. Take care. And Happy New Year once again.